Students, today we are going to discuss about principle and processes of biotechnology. This is chapter 11, and biotechnology deals with the techniques which are using live organisms or enzymes which are produced from these organisms to produce various kinds of products and processes which are obviously useful to the human beings. So in short, you can say that in biotechnology, we use the organism which are useful to human mankind, and we also use the certain kinds of enzyme which are secreted from these organism or other substances which are we extracted from these organisms, and we use them in the human welfare. So in that sense, we can also say that curd and bread and wine formation is also a part of biotechnology, because you all know that we all ferment the curd in our houses, and bread and wine, no doubt, they bread is made up in bakery and wine वो shops में बनते हैं जो जिस तरह की चीज़ें, but they all are the part of biotechnological process because these all are microbe mediated processes. इन सब में microbes जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो एक तरह से ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है इनिशियली. तो बायोटेक्नोलॉजी में और क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट आर द अदर प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स विच इंक्लूड द बायोटेक्नोलॉजी इज दैट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ test tube babies. So test tube babies formation is also a part of the biotechnology processes, and also synthesizing the gene. By using this technique, you can also develop a DNA vaccine, or you can correct the defective gene. These all are the part of the biotechnology. So there are certain principles in this biotechnology, and what are these principles? Basically, there are two principles which helps in this technique a lot. First is the genetic engineering is the one thing. What happens in this genetic engineering? Actually, in genetic engineering techniques, there are certain techniques to alter the chemistry of genetic material, that means DNA and RNA. तो हमारे पास ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम DNA या RNA को उनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर विश. जैसा हम चाहते हैं वैसा उनको हम बना सकते हैं, and after then we introduce them into host organism, and so that we can change the phenotype of the host organism. You know that if you are able to change the gene, और वो जब जीन आप जिस भी ऑर्गेनिज्म में डालोगे तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होगा, नॉट ऑन द basis of previous one. So you can change the DNAs and RNAs according to your wish, and then introduce it into the organisms, and this organism in which you introduce this altered DNA or RNA, it will express in a different phenotypic expressions. And another is the process engineering. What is it, the bioprocess engineering? Bioprocess engineering means you have to maintain a स्टाइल मीन्स कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, क्योंकि जब आप जीन को आइसोलेट करना है या कुछ भी इस तरह के प्रोसेस हैं, तो इन्वायरमेंट शुड बी इन्फेक्शन फ्री, उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. तो वैसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि हम कितना भी ध्यान रखते हैं कहीं ना कहीं उसमें कंडीशंस में कंटामिनेशन हो जाता है, तो उसको ध्यान रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट इट इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स. जो भी आप ग्रो करा रहे हो, ये ना कि आप एक टाइप का कोई बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हो और उसमें कंटामिनेशन हो गया तो 2-3 तरह के बैक्टीरिया या और माइक्रोब्स ग्रो करने लग गए. बिकॉज अगर ऐसा हो जाएगा तो यू विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, बिकॉज सपोज यू आर कल्चरिंग एनी बैक्टीरिया फॉर एनी पर्पज़. फॉर एग्जांपल, आप उनसे एंटीबायोटिक्स बनाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के एंटीबायोटिक्स आप उनसे लेना चाहते हैं, बट अब उस पर्टिकुलरली ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि आप ग्रो करा रहे थे उसमें कंटामिनेशन हो गया, तो अब ए के साथ में बी सी डी टाइप भी ग्रो कर रहे, तो और आपको ये ए से मिलने वाला पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स आपको चाहिए था, तो अब ये जो डी सी ये बी सब ये जो इसके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन अनदर थिंग, तो फिर आपको वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा. तो हमारा एम क्या होता है कि वी ग्रो दीज डिज़ायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स इन द लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, ये सब हम बनाना चाहते हैं. तो उसमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए कि उसमें साथ साथ कुछ और भी आ गया, तो आपका काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा.
now a little bit we try to understand that what is recombinant DNA technology, what is gene cloning, gene transfer, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. तो we are going to discuss little bit about that only. You all studied about the sexual reproduction, और उसमें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही चीज़ें पढ़ी हैं इन द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड वहाँ पर यू हैव नोटिस द थिंग दैट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट परमिट्स वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशल चीज़ क्या है, ये वेरिएशन परमिट करता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो इट लीड्स टू द वेरिएशन. और दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज न्यू इवोल्यूशंस जो इवोल्यूशन होते हैं वो इसी बेसिस पर होते हैं. लेकिन जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ी हैं उनके अंदर आपने देखा कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिटेन करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टू. दैट मीन्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स और उसे यू कैन से कंजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो एज इट इज़ पास ऑन होते जाते हैं. जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट गिव्स यू परमिशन फॉर द वेरिएशंस. तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कराते थे ट्रेडिशनली, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स. तो वेयर वी हैव सीन आइदर इट इज़ इन द केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और इन द केस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, we have seen that many a times that multiplication or inclusion of undesirable genes happens with the desired gene. You have studied that कि जब भी कोई सपोज हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कराते हैं तो उसमें जो जीन का मैनिपुलेशन है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता इस तरह कर पाना कि उसमें हमें केवल यूज़फुल जीन्स ही मिले. सपोज़ ये जीन है तो दीज आर द जीन्स विच आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, ये जीन्स तो हम चाहते हैं, बट इन बिटवीन ये भी जीन है विच आई एम जस्ट पुटिंग द डॉट ऑफ येलो कलर. तो ये भी जीन है. यू डू नॉट वॉन्ट दीज जीन्स इन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि टिपिकल हाइब्रिडाइजेशन जो हम कराते हैं ट्रेडिशनली उसमें ये पूरा का पूरा डीएनए आपका ऐसे का ऐसे पास ऑन होगा, और इसमें आपको ये ग्रीन वाले जीन जो हैं इनके साथ साथ ये येलो जीन भी मिलेगा. देयर इज़ नो वे टू रिमूव दीज येलो जीन्स. इनको आप हटाना चाहते हैं बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दैट मीन्स कि डिज़ायर्ड जीन्स के साथ अनडिज़ायर्ड जीन्स भी आपको नेक्स्ट जनरेशन में मिल जाते हैं. बट जो ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, दीज टेक्निक्स इनेबल अस कि वी कैन कट दीज जीन्स, और यू कैन से वी कैन आइसोलेट द जीन्स एंड इंट्रोड्यूस द डिज़ायर्ड जीन्स. जो भी आप चाहते हो आप अपने डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट कर सकते हो, आप उनको नेक्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो दैट मीन्स they give us liberation that we isolate and introduce few genes or set of desirable genes without introducing the undesirable gene into our टारगेट ऑर्गेनिज्म. तो ये हमें एक उससे फैसिलिटी मिली कि हम बिना अनडिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किए हुए, सपोज़ हमें ये येलो नहीं चाहिए थे तो ये अब हमारे पास टेक्निक इस आने के बाद वी कैन कट इट. आप इनको कट कर सकते हो, इन जीन्स को आप कट कर सकते निकाल सकते हो, और एक नहीं आप कितने भी जीन्स जो हैं इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो. तो ऑल दीज थिंग कैन बी पॉसिबल ओनली could be possible only because of biotechnological process. So what we do in the biotechnological process, so in this technique basically suppose there is a bacterium and you want to introduce a piece of DNA into it. So if you want to introduce a piece of DNA into it and you suppose able to introduce it also, आपने इसमें introduce कर दिया anyhow, तो द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई. अब ये डीएनए अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं होगा जो आपने इसके अंदर ये डीएनए डाल दिया है. और सपोज दिस इज़ द डीएनए ऑफ द दिस बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम का डीएनए है. तो व्हाट विल हैपन, अगर ये वाला डीएनए जो भी आपने इसमें डाला है, दिस डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इन इट, अगर ये इसके साथ इसका हिस्सा बन गया तो देन इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस डीएनए दैट मीन्स बैक्टीरियल डीएनए विल रेप्लिकेट. ये पर्पल कलर का जो डीएनए मैं बना रही हूँ दिस इज़ बैक्टीरियल डीएनए, दिस स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग क्योंकि इसका नेचर है रेप्लिकेट करना. तो व्हेन इट रेप्लिकेट्स तो साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन दैट दिस ग्रीन जो मैंने कलर का बनाया है जो इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो इट ऑल्सो स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिंग. ये भी साथ साथ मल्टीप्लिकेट होता जाएगा, जितनी बार ये डिवाइड होगा उतनी बार ये भी डिवाइड हो जाएगा. तो इन दैट वे यू कैन
गेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस जीन, दैट मीन्स दिस डिजायर्ड जीन। ये वाला डिजायर्ड जीन था आपका ग्रीन कलर वाला जो आप चाहते थे प्रोड्यूस करना। फिर बाद में जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी आफ्टर रेप्लिकेशन एंड यू ब्रेक द सेल, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉपीज ऑफ दिस जीन। तो आपको ग्रीन वाला चाहिए था, ये जीन आप आइसोलेट करके निकाल लेंगे और ये जो पर्पल वाले हैं इनको आप छोड़ देंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जीन क्लोनिंग। इफ आई शो यू विद द हेल्प ऑफ diagram, you can easily understand this. This is the diagram of gene cloning, and what happens in this diagram, that there is the foreign DNA. If I enlarge it, you can see it correctly. So this is the foreign DNA. Foreign DNA means the DNA which you want to introduce. ये वो DNA means gene. Suppose आप ये gene बनाना चाहते हो, इसकी copies बनाना आप चाहते हैं, तो उसको मैं बोल रही हूँ फॉरेन डीएनए। दैट मीन्स इट इज़ डिजायर्ड, ये बाहर से आपने लिया है, ये जीन फॉरेन डीएनए मीन्स जो आपने लिया है। एंड दिस इज़ अ वेक्टर डीएनए और द प्लाज्मिड डीएनए। व्हाट आर द वेक्टर्स? बेसिकली वेक्टर्स, जैसे आपने मॉस्किटो में पढ़ा है, दैट मॉस्किटो एक्ट्स एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट। वो मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करने का काम करता है, दैट मीन्स लाने ले जाने का काम करता है, बिकॉज मलेरिया नॉट हैपेंड विद मॉस्किटो। आप सबको पता है कि मॉस्किटो से तो मलेरिया नहीं होता है, वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाने वाला कौन है? मॉस्किटो है। तो इन द सेम वे जो वेक्टर्स हैं ये होते हैं प्लाज्मिड्स, एंड यू हैव स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड दैट व्हाट आर प्लाज्मिड, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। तो वी नीड टू यूज दिस वेक्टर फॉर द कैरिंग द एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है या फॉरेन डीएनए है, वी हैव टू लिंक्ड विद दिस प्लाज्मिड डीएनए। That means we linked the foreign DNA with the plasmid DNA, and these plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA which is attached to it. तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्लाज्मिड्स कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हम प्लाज्मिड्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी वो जो बनाया था अभी लाइक दिस पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर। तो this DNA is the purple color DNA which is present in the bacterium cell. This is called plasmid DNA, because I told you that in bacterial cell, suppose this purple color is the main DNA of the bacterium and this pink color is the plasmid DNA. This is extra chromosomal DNA. So it has the capacity to carry the foreign DNA and उसको ट्रांसफ़र कर सकता है वो कहीं भी। तो इसको हम वेक्टर्स के तरीके से यूज़ करते हैं बहुत जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू। अब आप समझ सकते होंगे कि दिस इज़ द फॉरेन डीएनए, दैट मीन्स द डिजायर्ड डीएनए विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस into the plasmid DNA, and this is the vector DNA or the plasmid DNA. So with the help of restriction enzyme, क्योंकि कोई आपको एंजाइम की हेल्प चाहिए होगी जिसकी हेल्प से आप इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे डीएनए, तो यू हैव टू ब्रेक दिस डीएनए ना, इस डीएनए को ब्रेक करना होगा, बिकॉज प्लाज्मिड इज़ अ सर्कुलर डीएनए। ये प्लाज्मिड हो गया, ये मेन डीएनए हो गया, तो ये सर्कुलर है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट यूज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट बोथ द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डालेंगे वो क्या करेगा कि वो स्पेसिफिक हिस्से पॉइंट से इस वाले डीएनए को भी कट करेगा और इस वाले डीएनए को भी कट करेगा। like here you can see that the portion of DNA, and here you can also see the cut. And ligases is the another enzyme which joined the foreign DNA, ये वाले DNA को इसमें ऐड कर देगा ला करके वो। सपोज इफ़ यू चेंज द कलर, ये पिंक कलर का हो गया और इस वाले को आप ग्रीन में अगर कर लो तो इट विल इंट्रोड्यूस इट हेयर, ये यहाँ पर इसको ऐड कर देगा। लाइगेजेस आर द एंजाइम्स विच यू वर्क्स एज अ ग्लू। लाइगेज जो है वो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सीजर्स, वो कट करने का काम करते हैं डीएनए को एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये अब ये वाला जो प्रिपेयर हो गया, दैट मीन्स दिस डीएनए इज़ लाइक दैट। इसमें ये हमारा डिज़ायर्ड जीन भी इसके साथ में जुड़ गया, ठीक है, ये हमने इसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। नाउ वी इंट्रोड्यूस इज इनटू द बैक्टीरियम सेल, दीज आर द बैक्टीरियम सेल, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ बैक्टीरियल डीएनए, दैट मीन्स दिस प्लाज्मिड डीएनए इज गोइंग टू रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट होगा, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन बहुत सारी सेल्स भी मल्टीप्लाई होती जाएंगी, किसी सेल में तो नहीं होगा। यू हैव सीन दैट एक बैक्टीरियल सेल है से दो बन गई हैं, अगेन ये डिवाइड होती जाएंगी एंड बैक्टीरियल सेल आर गोइंग टू फॉर्म, एंड इन दैट वे दिस डीएनए स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, एंड लेटर ऑन यू विल गेट लॉट्स ऑफ सच काइंड्स ऑफ डीएनएज, बहुत सारे डीएनएज आपको एंड में मिलेंगे, और सबके अंदर ये आपका थोड़ा सा हिस्सा
फॉरेन जीन का भी होगा, जिसको आप लेटर ऑन क्या करेंगे, कट कर देंगे और इसको आप रिमूव कर देंगे, देन यू विल गेट दैट फॉरेन डीएनए, ओरिजिनल फॉरेन डीएनए, क्योंकि आपको चाहिए था, बाकी के डीएनए की तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ डीएनए, ये ऐसे आपको मिल जाएगा, ये जो भी आप जीन बना रहे थे जिसकी मल्टीपल कॉपीज़, तो यू विल गेट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दैट. तो हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, so this is the all about the process of formation of you can say multiple copies of foreign DNA, and इसी को हम recombinant DNA technology कहते हैं. Why we call them recombinant? Because it recombines the two DNAs. एक foreign DNA को आपने recombine कर दिया, तो ये जो DNA नॉर्मल DNA जो आपको दिख रहा है, ये DNA अब ऐसा DNA ये नहीं रहा ना, ये जिस टाइप का DNA की हम बात कर रहे हैं, ये DNA अब ऐसा तो नहीं रहा ये वाला DNA, तो यू चेंज इट, इसको आपने रिकम्बाइन करके न्यू कॉपीज़ बना ली हैं. दैट्स वाई कॉल्ड देम दिस टेक्निक एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो अब ये चीज़ हम एक माइंड में रखनी है कि इफ़ वी वांट टू इंट्रोड्यूस a foreign DNA into a bacterium cell, this is the bacterium cell and this is the foreign DNA. If you want to introduce it into the host in the bacterial cell and we want that it start multiplying, it will not going to happen. ये multiply नहीं होगी until and unless you integrated this genome into the वेक्टर और यू कैन से प्लाज्मिड्स. तो अब वो कब तक नहीं होगा, जब तक कि आप इस बैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट इस प्लाज्मिड के अंदर आप इस फॉरेन डीएनए को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जब आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, ये रेप्लिकेट करेगा. बैक्टीरिया ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो करते हैं, आपको पता है, रिप्रोड्यूस करते हैं वो, and then this alien piece of DNA has become a part of this chromosome, that means bacterial chromosome. जब तक आप बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बनाओगे फॉरेन डीएनए को, it will not going to replicate. So in a chromosome there is a specific DNA sequences known as the origin of replication. अब ये जो प्लाज्मिड्स है इसके पास origin of replication कुछ specific DNA sequences होते हैं, वो होते हैं because they are responsible for initiating the replication process. तो जो वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं वहीं पर वो ओपन होंगे और यहीं पर ये फॉरेन डीएनए जो आपका यहाँ पर मैंने अटैच किया है, ये फॉरेन डीएनए केवल उन्हीं जगहों पर, दैट मीन्स उन विच स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, वहीं पर केवल वो अटैच होते हैं. तो एलियन डीएनए इज़ लिंक्ड with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself into the host organism, and this process is known as cloning, as I told you earlier. And or you can say by cloning we can make multiple identical copies of any template DNA, किसी भी template DNA की आप multiple, this is template DNA also you can call them, तो इसकी कितनी भी copies जो हैं वो आप बना सकते हैं by the process of gene cloning. They will be identical. So there is a scientist named Stanley Cohen and Herbert Boyer. These are two scientists. Basically these scientists give us that idea कि हम ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कर सकते हैं, otherwise it is not possible. तो they have constructed the first recombinant DNA, and for that the possibility emerges that linking of gene can be a one option. तो उन्होंने साल्मोनेला टाइफूरियम इज़ अ बैक्टीरियम, उस पर उन्होंने 1972 में आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था अनदर बैक्टीरियम विच इज़ नोन एज ई कोलाई. तो व्हेन द डीएनए इज़ ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई विच इज़ सिमिलर टू साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया जो ई कोलाई होता है साल्मोनेला से मिलता जुलता बैक्टीरिया होता है. तो उन्होंने जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था साल्मोनेला का, ये उन्होंने इसमें ट्रांसफ़र किया था ई कोलाई में, एंड वहाँ से लोगों को आइडिया लगा कि येस वी कैन ट्रांसफ़र द जीन ईज़िली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, क्योंकि लिंक करने के लिए मतलब फॉरेन डीएनए के अंदर या ब्रेक करने के लिए, उनको कट करने के लिए वी नीड सर्टेन एंजाइम्स, वो ऐसे ही नहीं हम उनको जोड़ सकते. तो यू हैव सर्टेन बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनके अंदर आपने जीन इम्प्रूव करके डाला है, तो यू नीड सर्टेन स्टेप्स. तो कुछ स्टेप्स होते हैं, दीज आर द स्टेप्स विच आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो. अब ये जो स्टेप्स हैं वन बाई वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिज़ायरेबल जीन. कोई भी डीएनए है, सपोज दिस इज़ द डीएनए, एंड यू हैव टू नाउ आइडेंटिफाई कि कौन सा जीन जो है वो आपके लिए यूज़फुल है, एंड विच जीन यू वांट टू
क्लोन, आप कौन से जीन की क्लोनिंग करना चाहते हो, कौन सा जीन आपको चाहिए है। तो सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड इंट्रोडक्शन of the identified DNA into the host. After the identification, आप उस जीन को, सपोज इतने इस हिस्से के जीन को आपको चाहिए था क्लोन करना है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंड आफ्टर देन यू मेंटेन द इंट्रोड्यूस्ड DNA in the host and transfer of the DNA into its प्रोजेनी। दैट मीन्स उसके बाद जब मल्टीपल कॉपीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे एंड उनको देन ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पर आपको करना है। तो दीज आर द वेरियस steps in genetic modifying organism, or you can say GMO, that means genetically modified organism. And now come to the tools which are very interesting thing, क्योंकि जब आपको genetic engineering करनी है तो you need certain tools without which it is not possible to do all these things. तो अब उनके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, वो सबसे पहले यू नीड द एंजाइम्स, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर, आपको वो चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? बिकॉज यू नो दैट फॉर दिस पर्पज यू हैव टू कट द जीन, डिजायर्ड जीन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट जीन, यू हैव टू ज्वाइन दीज जीन्स। तो ये सब चीज़ करने के लिए यू नीड सर्टेन एंजाइम्स। लाइक अब बहुत सारे एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर कटिंग ऑफ जीन, इस एंजाइम की हेल्प से आप जीन को कट करेंगे। देन पॉलीमरेज एंजाइम ऑन अगेन हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ जीन और यू कैन से DNA। देन लाइगेजेस यूजेस एज ग्लू, ये उनको चिपकाने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। वेक्टर्स, वो ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे आपके एलियन पीस ऑफ DNA को। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो ऑल दीज आर द वेरियस टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विदाउट these tools you can't imagine the process. And we come to the next point, that is next topic, that is restriction enzymes. So what are these restriction enzymes? As name indicate that these enzyme restrict, that means they work on certain restricted areas of the DNA. So 1963 there are two enzymes which are responsible for restricting the growth of bacteriophages in E. coli were isolated. एंड उनमें दोनों में से क्या था, एक जो था इट एड्स टू मिथाइल ग्रुप टू द DNA में इसका काम होता था मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। एंड दूसरा काम होता था इट कट्स द DNA, ये DNA को कट कर सकता था। तो ये दो जो हैं एंजाइम जो कि बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को ई कोलाई में रोकते थे, उनको आइसोलेट किया गया और वो ये दो एंजाइम्स निकले। उन दोनों की क्वालिटी क्या थी? एक की क्वालिटी थी कि वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था DNA में और दूसरे की क्वालिटी थी वो DNA को कट कर सकता था। तो हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लेटर एंड दिस लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बाद वाले को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज HindII, वी राइट इन द रोमन, तो HindII है। एंड इस फंक्शनिंग इज डिपेंड ऑन स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये कहीं भी काम नहीं करता है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड्स पर ही काम करता है। एंड HindII ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। कुछ पर्टिकुलर 6 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है, उसको पहले पूरे DNA में ये रिकॉग्नाइज करेगा, देखेगा। लाइक GAATTC, CTTAAG, ये वाला एक सीक्वेंस है, ले लेगा ये GAATTC। तो ये हो गए आपके 6। तो इन जहाँ पर ये लगे होंगे न्यूक्लियोटाइड, ये वहीं पर कट करता है, लाइक दैट आप इसको समझ सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको आप क्या कहेंगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। तो ये इसको जहाँ पर भी देखेगा GAATTC वाला सीक्वेंस, ये वहीं पर कट करते हैं। तो अभी तो nowadays we know more than 900 restriction enzymes, हमें पता है अभी 900, more than 900 restriction enzymes जो हैं आप जानते हैं। एंड मोस्टली नियर अबाउट 230 strains of these enzymes are isolated from the bacterium. तो अलग अलग these enzymes are isolated from over 230 strains ऑफ बैक्टीरिया। तो 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं, क्योंकि एंजाइम्स कहाँ से मिलेंगे? बेसिकली बैक्टीरिया और इस तरह के ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे। तो ये 230 तो बैक्टीरियल स्ट्रेन से हमें मिले हुए हैं रिकग्निशन सीक्वेंसेस के बेसिस पर। नाउ कम टू द नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स, कि इन एंजाइम्स का नाम जो है वो कैसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा हुआ देखा है बहुत जगह पर, E को R1 ऐसे,
तो अब इसका नाम ये कहाँ से आया? तो फॉर एग्जाम्पल बाई कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज़ द फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस। अब ये इको इश्चीरिचिया कोलाई से आया, इश्चीरिचिया हो गया। तो ये फर्स्ट नाम जो है इसका हमने कहाँ से लिया? जीनस से। एंड सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जाम्पल इको अराई कम्स फ्रॉम इश्चीरिचिया कोलाई, तो ई से इश्चीरिचिया, सी से सीओ से कोलाई, जीनस एंड स्पीशीज, एंड आर एंड वन। वॉट इज़ आर? आर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है वहाँ से। एंड वन मीन्स दिस इज़ द रोमन नंबर वन, it indicates the order in which these enzymes were isolated from the strains of bacterium। अगर पहले ये मिला था तो इसको हम 1 कहेंगे, अगर बाद में मिला था नंबर 2 पे आया था तो इसको हम नंबर 2 कहेंगे, इको आर 2, इको आर 3, ऐसे करके हम इसका नाम दे सकते हैं। तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम्स। नाउ कम टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस एक ग्रुप है एंजाइम्स का, उसके अंदर ये दोनों आते हैं, कौन से? एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड endonucleases। These are two and their functions are also different because exonucleases, suppose this is the DNA, तो exonucleases cut the DNA on the ends, at the ends। आप ये इनके ends पर इसको कट करते हैं, रिमूव करते हैं। exonucleases जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से रिमूव करेंगे DNA के? फ्रॉम द एंड्स। एंड जो आपके एंडोन्यूक्लियेजेस हैं they remove the nucleotides at the specific place, so that means exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonucleases makes cut at specific position of DNA। कोई भी specific position, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, that means वो specific जगहों पर कट करते हैं। लेकिन exonucleases उनका नाम ही exo माने exon से आप समझ लो, है ना, एग्जिट से, वो केवल किनारे पर एंड से ही उनको कट करते हैं। और जब भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप देते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, जो कि मैंने बताया आपको स्पेसिफिक प्लेसेस पे कट करते हैं, तो फर्स्ट दे इंस्पेक्ट ऑल द डीएनए। सपोज आपने एंजाइम डाला, दिस इज़ द डीएनए, तो अब वो देखेंगे पहले पूरे को कि कहाँ पर मुझे मेरा स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा जहाँ से मैंने कट करना है। एंड व्हाट आर दीज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस? दीज आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। palindromic sequences। And what is palindromic nucleotide sequences? Palindromic nucleotide sentences is like जैसे कि आपको एक वर्ड है रबर, RUBBER मैंने लिखा है, रबर सपोज कर लो, तो और यू कैन से which is given in your book also, that is word Malayalam। if you write it here MALAYALAM, Malayalam। तो this is the word which if you start reading this word, you can say the group of letters that forms the same word when read both forward as well as the backward direction। that means मलयालम को चाहे आप आगे से पढ़ोगे चाहे इधर पीछे से पढ़ोगे, ये दोनों तरफ से इसका मीनिंग सेम आएगा। तो जो पैलिंड्रोमिक होते हैं इन केस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस इज़ जस्ट लाइक दैट, कि आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो। आप अगर ऐसे करके रबर लिखते हो हिंदी में, तो आप इधर से भी पढ़ोगे तो ये रबर ही पढ़ा जाएगा, और अगर आप इधर से भी पढ़ोगे तो भी आप ये रबर ही पढ़ोगे इसको। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। तो द पैलिंड्रोम, इस सीक्वेंसेस को डीएनए कहते हैं जो मैंने आपको भी बताया। तो द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ द reading is kept the same। for example there is a sequence given in your book, this is the example, this sequence if you see it, this is 5 dash and 3 dash and 3 dash and 5 dash end of the DNA। आपको पता है एंटी पैरेलल होते हैं दोनों, एंड यू कैन सी दैट GAATTC ये इसका एंटी पैरेलल स्टैंड है, तो इसका ऑपोजिट होगा C के अगेंस्ट G, T के अगेंस्ट A, T के अगेंस्ट A। तो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। and restriction enzymes cut the strands of DNA a little away from the center of the palindromic sites but between the same two bases on the opposite side। ये दोनों जो डीएनए को कट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा है तो कट किया है, तो पूरा लंबा सा डीएनए सपोज होगा इस तरह से, तो ये जहाँ पर ये वाला सीक्वेंस मिलेगा ये वहाँ पर कट करते हैं, लेकिन दोनों स्टैंड में सेम जगह पर जो है वो कट करते हैं। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा इस वाले स्टैंड में कहीं यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पर, और दूसरे वाले स्टैंड में इन्होंने यहाँ पर कट कर दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर फर्स्ट स्टैंड में यहाँ पर कट हो रहा है तो सेकेंड स्टैंड में भी यहीं पर कट करते हैं।
तो ये जो अपोजिट स्टैंड्स हैं, ये जब ऐसे कट करते हैं डीएनए, तो यहाँ पर एक हैंगिंग, इस जैसे सपोज आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक हैंगिंग सा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर। ये दीज आर द स्ट्रक्चर्स यू कैन सी, वन इज डीएनए वी ऑब्टेन फ्रॉम वेक्टर डीएनए वी कॉल देम, एंड अनदर इज नोन एज फॉरेन डीएनए। तो ये डीएनए है प्लाज्मिड का, रेड वाला, इसमें मुझे इंट्रोड्यूस करना है ये फॉरेन डीएनए। तो फॉर दैट वी हैव टू ज्वाइन दीज टू डीएनए ना, हमें इसको ज्वाइन करना होगा। सपोज दिस रेड वन, आई एम जस्ट ड्राइंग इट हेयर फॉर योर कन्वीनियंस, एंड दिस इज द ब्लैक वन, ये वाला। तो इसको इसके साथ में ज्वाइन करना है। एंड यू ऑल नो दैट डीएनएज आर, जब टू स्टैंड्स ऑफ डीएनएज आर अटैच्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब ये हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दे कट दीज स्ट्रक्चर्स, तो आप यहाँ देखो इन्होंने कट किया है एंजाइम्स ने, और जब कट किया तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर शोन हेयर, GAA-TTC, CTT, AAG, दीज आर अपोजिट स्टैंड। और यहाँ पर भी ये इस तरह से इन्होंने कट किया है। देन वी रिमूव दैट अपर वन, ये हटा देंगे हम, ये ऊपर वाला ये रिमूव कर देंगे, और इधर से ये इनका नीचे वाला ये रिमूव कर देंगे। तो दिस इज़ नोन एज ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। ये वाला भी, ये जो पूरा बन गया, दिस इज एंड दिस इज, ये कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। अगेन आई एम शोइंग यू व्हाट आर द स्टिकी एंड्स. These are the sticky ends. These are the sticky ends. Why we call them the sticky ends? Because after using the restriction endonuclease enzyme, these leave single stranded portion at the ends, and they are overhanging stretches. Means ऐसे लटकते हुए से दिख रहे हैं ना, overhanging stretches हैं. They form the sticky ends. में चिपचिपे होते हैं. क्यों चिपचिपे मैं कह रही हूँ? क्योंकि इनके हाइड्रोजन एंड जो है वो अब खुले हुए, यहाँ पर अब कोई दूसरा तो है नहीं यहाँ पर अटैच होने के लिए, तो दीज आर ओपन, एक्सपोज्ड हैं ये, और ये रेडी हैं अटैच करने के लिए किसी भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को अपने साथ में। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इजीली और जल्दी कन्वीनियंटली इस वाले को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, लाइक दिस। ये आप देखो यहाँ पर इन्हें अटैच कर लिया साथ में। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, क्योंकि अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से भी हो सकते हैं। तो व्हेन कट बाई the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends, and these can be joined together using DNA ligases. अब ये जो enzymes हैं, all ये जो diagram है, this is very important diagram because this diagram shows the various steps in the formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme EcoR1. ये EcoR1 का उन्होंने फंक्शन दिखाया है कि कैसे it works and forms the recombinant DNA. Here you have also studied the formation of recombinant DNA. तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. This is the diagram showing the recombinant DNA technology, and this is the diagram which shows the function of restriction endonucleases. सेम चीज़ है, बट यहाँ पर डिफरेंस है कि आपको यहाँ पर एंजाइम्स का यूज़ करते हुए उन्होंने दिखाया है. फॉर एग्जाम्पल, if you see it, the diagram carefully, on the first step, these are the two DNAs. This DNA is of vector DNA, that means DNA from the plasmid, and this is the foreign DNA, that means it is desired DNA which you want to incorporate with the vector DNA. तो the enzyme cuts both the DNA strand at the same site. जब आप restriction endonuclease enzyme ये डालेंगे, एंडो या एक्सो कोई भी, तो ये इक्वल साइज से इसको कट कर देता है. EcoR1 cuts the DNA between bases GNA only when the sequence GAA-TTC is present in the DNA. ये स्पेसिफिक साइट उसको चाहिए, जो अभी हमने बात की थी कि जब भी कट करते हैं डीएनए तो दे नीड आर रिकग्निशन साइट, उनको एक रिकग्निशन सीक्वेंस चाहिए होता है. उसको रिकग्नाइज करने के बाद वो उसको कट करते हैं, तो ये वो रिकग्निशन सीक्वेंस को रिकग्नाइज करते हैं ये एंजाइम्स, पूरा इंस्पेक्ट करते हैं डीएनए को, एंड व्हेन एवर दे फाइंड देयर स्पेसिफिक साइट ओनली देन दे स्टार्ट वर्किंग, एंड तब ये कट करते हैं GAA-TT साइट पर बेसिकली. एंड आफ्टर देन व्हाट हैपन दैट स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड. स्टिकी एंड्स मीन्स एक हाफ हिस्सा जो इसका ऊपर का डीएनए का है, दिस फॉर्म्स द स्टिकी एंड्स, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही एक्सपोज हो रहे हैं. AA और TT हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही मिलेगा AA और TT को अपने साथ के, तो ये फटाफट क्या कर जाएंगे, अपने साथ में ये ज्वाइन कर जाएंगे, यानी कि A के अपोजिट T आ जाएगा, A के अपोजिट T और T के अपोजिट A जैसे इनको मिलेंगे. तो ये जैसे मिलते हैं, ये आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दे फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
cuts of vector and source DNA with the same restriction enzyme is compulsory. ये नहीं कोई से एंजाइम से भी कट हो रहे हैं, तो सेम एंजाइम कट करता है, तो उसको पता होता है कि किन किन न्यूक्लियोटाइड्स पर उसने एक स्ट्रेच को कट किया है, या यू कैन से कि वेक्टर को कट किया है या सोर्स डीएनए को कट किया है. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता या नहीं बन सकता. तो दिस इज़ द वन थिंग. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द formation of recombinant DNA or the cloning. In the next topic we will discuss some other things.